السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 19 نومبر 2022 بروز ہفتہ سنیچر کو درگاہ مسجد دلے شاہ رحمان کھڑک پورہ ناندیڑ میں ایک مجلس ماہانہ مجلس برائے مستورات خواتین لیڈیز کے لیے عمل میں آئی ہے، جس کے روح رواں حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب قاسمی نقشبندی لاتور والے رہے ہیں، جن پر خاص طور سے حالت حاضرہ کے اعتبار سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ جو آج کل معاشرے کے اندر جو گھریلو نظام ہر طرح سے متاثر ہے اور سارا سکون غارت ہو چکا ہے، اس کے اوپر حضرت والا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور امہات المؤمنین ازواج مطہرات کی سیرت کی روشنی میں بڑی اچھی باتیں بتائی ہے کہ گھریلو نظام کو سدھارنے کے لیے عورت کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور عورت کس طریقے سے دین پر آسانی سے عمل کر جو ہے اپنے گھریلو نظام کو خراب ہونے سے اور اپنے بچوں کے نافرمان ہونے سے حفاظت کر سکتی ہے، اور یہ ساری باتیں حضرت نے کھل کر بتائی ہیں الحمدللہ۔ اور یہ پروگرام بعد ظہر کے رکھا گیا ہے، جو مصلیان مسجد اور محلے کے ذمہ داران و اراکین مسجد کمیٹی اس کے اندر خاص رہے ہیں۔ الحمدللہ خواتین میں طعام کا بھی نظم کیا گیا تھا، اور باقاعدہ جو ہے 2:30 بجے مجلس شروع ہو چکی تھی، 2:30 سے 4 بجے تک مجلس چلی ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح کی مجلس ہر مہینے 2 مہینے میں جو وقتاً فوقتاً جو ہے حضرت کا وقت ملتا رہے گا، اس طرح سے اسی جگہ منعقد کی جائے گی۔ یہ بہت بڑی گھروں کے جھگڑوں کی بہت بڑی مشکل اور بڑی مصیبت نے قسم کی ہے۔ ولی اسرا کا بیت، گھر کا ماحول ہم کو گھر میں رہنے کے قابل بنانے کی کوشش دونوں نے مل کر کرنا چاہیے۔ مردوں نے بھی کوشش کرنا، اور گھر میں جب مرد حضرات آتے ہیں باہر ذمہ داریوں سے، تو گھر کی خواتین چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، بیٹیوں کی شکل میں ہو، یا بیوی کی شکل میں ہو، یا ماں کی شکل میں ہو۔ اس وقت بہت شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں، اصلاح اور آپس میں جوڑ کے کام، آپس میں حسن معاشرت اور حسن سلوک کے معاملے میں جو باتیں سامنے آتی ہیں، ماؤں کا بہت بڑا دخل ہے گھروں کے اجاڑنے میں۔ خانہ آبادی شادی تو کرتی ہے خانہ آبادی کے لیے، گھر بسنے کے لیے، لیکن باری باتوں کی شکایتیں اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو کرتی ہیں، گھر کا ماحول درہم برہم ہو جاتا ہے۔ وہ خانہ آبادی کی بھی شادی انہوں نے کیے تھے، اور وہی مائیں بڑے ارمانوں، بڑی خواہشات، بڑی تمناؤں کے ساتھ جو کچھ بہوؤں کو لے کر آتی ہیں، وہ مسلسل غیبتیں، چغلیاں، بات وقت تہمتیں اور بات کا بتنگڑ، چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کر پیش کر کے نہ اپنے بیٹے کو گھر میں سکون سے رہنے دیتے، نہ اپنے گھر والے کو، ان کو بھی تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اور بیچارے باہر کے کام لانے کے بعد جو مائیں، گھر کی بڑی عورتیں شکوے شکایتیں اپنے ماں سے سنتے ہیں، گھر کے بڑی بہنوں سے سنتے ہیں، اس کا اثر گھر والی پر ہوتا ہے، اور گھر والی پر اس کا نزلہ زکام ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس لیے دوسری چیز ہے گھر کا ماحول انسیت کا، الفت کا، مودت کا، محبت کا، ہر ایک میں دونوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ گھر میں ہم سکون اور اطمینان رہ سکیں۔ گھر اسی کو کہتے ہیں جہاں گھر والے سکون اطمینان سے رہ سکتے ہو، جہاں وہ جیل خانہ تو نہیں ہے، قید خانہ نہیں ہے کہ جب آدمی کب تک چھوٹنا چاہے۔ یہ ماحول گھر کی عورتوں نے بھی بنانا چاہیے، اور مردوں نے بھی اپنے آپ کو جلاد سمجھ کر ہٹلر شاہی، تانا شاہی اور داروغہ پن، اگر میں روز آ کے شکایتیں نہیں کروں گا، روز گھر کے اندر میں اپنا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کروں گا، تو میں شوہر خادم کیسا کہلاؤں گا؟ اگر میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہوں، بلا وجہ روک ٹوک کرتا رہوں، بلا وجہ زیادتی کرتا رہوں گا، تو شوہر، ورنہ شوہر نہیں۔ اس خیال کو بھی ہم سے نکال دینا چاہیے۔ دوسری نصیحت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھر کا ماحول انسیت کا، پیار محبت کا، عفو درگزر، غلطیاں ہوتی ہیں۔ قرآن شریف کے اندر جو الفاظ ہیں، مرد عورتوں کے لیے لباس، عورت مرد کے لیے لباس، لباس کے بہت سارے خوبیاں ہوں گے، عیبوں کو چھپانا بھی ہوگا، مقام مرتبے شان کو بڑھانا بھی ہوگا، لیکن لباس میلا بھی ہوتا ہے، لباس کو دھوتے رہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عدالتوں میں، کورٹ کچہری میں نہ جاتے، بہت بڑی وجہ صرف یہ ہے کہ گھر کے اندر ہم نے اپنے گھر کے مسائل کو حل کرنے، اور عورتوں نے اپنے حقوق کو سیکھ کر
समझ कर उसके मुताबिक अपने फराइज को अदा करने में कोताही न बरतते। घर के मर्द हजरात अपने हुकूक क्या हैं, हमारे पर क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। हमको अल्लाह तबारक व तआला ने घर का मुंतजिम, घर का इंतजाम संभालने वाला, घर के सारे अखराजात नान नफका रोटी कपड़ा मकान और खवातीन की सारी ज़रूरतों को पूरा करने का जिम्मेदारी अल्लाह ने अता फरमाई है। घर के मर्द हजरात अपने फ़राइज़ को अदा करते, खवातीन अपने फ़राइज़ को सीखकर अदा करती। यकीनन इस वक्त में जो फैमिली कोर्ट है, महिला मंडल हैं, वहाँ पर हमारे किसी को जाने की नौबत ना आती। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया, वली यसा का बैतुक, अपने घर के माहौल को संवारो, इतना खुशगवार बनाओ, इतना उसके अंदर मेहनतें करो हर एक मिलकर कि वो घर दिल लगने के काबिल बन जाए। यही वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद खैरुकुम li अहलिही, तुम में बेहतरीन इंसान वो हैं जो अपने अहल व अयाल, अपने फैमिली, अपने कुंबा बिरादरी, अपना हमारे जो घर के लोग हैं, बीवी बच्चे हैं, उनके साथ सब में बेहतर हो। बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा नेकी करने वालों को आपने सबसे बेहतर नहीं फरमाया। फरमाया अपने घर वालों के लिए जो बेहतर होंगे वो तमाम में तुम में सब में बेहतर कहलाएंगे। उससे आगे बढ़ के फरमाया व अना खैरुकुम li अहली, मैं अपने अहल व अयाल, मैं अपनी फैमिली, मैं अपने खानदान और घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। वाक़यात अगर कोई सुने इस सिलसिले में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया अपने बीवियों के साथ, अपने बेटियों के साथ और अपने नवाजों के साथ, घर वालों के साथ, इतने सारे आदम की फिक्रें, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन होने के बावजूद, सारे नबियों के इमाम होने के बावजूद आपने अहलो अयाल के साथ में किस तरीके से जिंदगी गुजारी है। यकीनन हम कह सकेंगे खवातीन के हुकूक अदा करने में और घर वालों के साथ बेहतर हुस्न सुलूक और बेहतर रवैया अपनाने में सारे इंसानों में सबसे आला, सबसे ऊंचा मकाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जैसे किसी और मामले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर कोई नहीं हो सकता। बहैसियत खाविद होने के बीवियों के लिए हुजूर से बढ़कर कोई खाविद नहीं हो सकता। बाप होने की हैसियत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियों के बाप के हैसियत से अगर कोई सोचे, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे किसी को बाप हक यकीनन कोई इंसान हुजूर के जैसा कोई बाप का हक अदा करने वाला आपको नहीं मिल सकता। नवाजों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना के हैसियत से कोई नाना आपको दुनिया में नहीं मिल सकते। मर्दों ने ये सोचना चाहिए, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। हम भी बेहतरीन शौहर, बेहतरीन बाप और बेहतरीन खानदान के परवरिश करने वाले हैं, इसका ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इज़्दिवाजी फैमिली और खानदान के कुंबे के जो मसाइल है उससे छुटकारा, नजात मिलेगी, राहत का चेहरा सुकून का हमारा घर जरिया बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुक सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु हबीबुक सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ऐ मौलाए करीम, आपने अपने करम से, अपने फजल से, अपने मेहरबानी से हम पर बेइंतहा एहसानात इनामात फरमाए हैं। अल्लाह आपने अपने करम से हमको अशरफुल मखलूकात इंसानों में पैदा फरमाया। ऐ अल्लाह आपने इंसानों में से भी हम सबको ईमान की नेमत से मालामाल फरमाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया। ऐ अल्लाह हमें इन नेमतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमा, शुक्रगुजार बना, नाशुक्रा बनने से हिफाजत फरमा। ऐ मौलाए करीम, अपने फजल से, करम से हम सब की लग़ज़िशों को, कमियों को, खताओं को, गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह बहुत माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ी आपको बहुत पसंद है, आप माफ़ करते हैं, आपने माफ़ करने का हुक्म फरमाया है। ऐ अल्लाह ये सारा मजमुआ
बहुत देर से आपकी बात सुनने, ऐ अल्लाह दीन की बात को कहने सुनने के लिए जमा हुआ है। ऐ अल्लाह इसमें बड़ी उम्र की खवातीन बहुत से बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। ऐ अल्लाह आपकी रहमत बहाना ढूंढती है, इनके इस इखलास और साथ दीन के मस्जिद में बैठने को बहाना बनाकर हम सब के लिए अल्लाह मग़फ़िरत का जरिया बना दीजिए। अल्लाह रहमत की नजर डाल दीजिए, अपने करम से अल्लाह हमारे नज़र को माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह दीन का इल्म सीखने की हम सबको तौफीक अता फरमा, जो इल्म आपने अता फरमाया उस पर अमल सहल और आसान फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा। टूटे फूटे जो कुछ छोटे मोटे अमाल होते रहते हैं, ऐ अल्लाह अपने करम से उन अमाल को शर्त कबूलियत से मालामाल फरमा। ऐ अल्लाह हम सबों को दीन का इल्म नसीब फरमा, शऊर अता फरमा, समझ अता फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबों को कबूल होने वाली दुआएं नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सच्ची पक्की तौबा हम सबको करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में पढ़ी गई, उसकी वजाहत तशरीह की गई, ऐ अल्लाह हम सबों को अपने ज़बानों को काबू में रखकर, कंट्रोल में रखकर, ऐ अल्लाह दुनिया और आखिरत के मुश्किलों से बचने की तौफीक अता फरमा, घरों के माहौल को संवारने की मेहनतें करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने कमियों, अपने कोताहियों, अपने लग़ज़िशों पर, गुनाहों पर तेरे सामने रोने की, गिड़गिड़ाने की, आहोदारी की, आजिज़ी की, इनके सारी की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आपके सामने न रोने से और आपसे जैसे डरना चाहिए वैसे न डरने से, ऐ अल्लाह दुनिया की चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ों से डरते रहते हैं, अगर नहीं डरते तो अल्लाह जैसे डरना चाहिए आपसे डरने का जो हक है, ऐ अल्लाह वो डर हमें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आपका डर भी अता फरमा। ऐ अल्लाह आपके मिलने के काबिल अमल करने की तौफीक अता फरमा, सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ज़ौक़ से, शौक़ से, रग़बत से हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह नेकियों से जैसे हम खुशबू से और मिठाइयों को पसंद करते हैं, ऐसे नेक कामों को पसंद करने वाला बना। जैसे हम आग से और नाग से डरते हैं, भागते हैं, हर गलती से, हर लग़ज़िश से, हर भूल चूक से, हर गुनाह से हमें डरने वाला बना दीजिए। ऐ मौलाए करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मकबूल दुआओं में जो भलाइयाँ, अच्छाइयाँ, नेकियाँ चाही और मांगी हैं, उन दुआओं में हम सबका हिस्सा नसीब फरमा। जिन जिन मुश्किलात से, आफतों से, परेशानियों से, बलाओं से हिफाजत और पनाह मांगी है, ऐ अल्लाह हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह इस मस्जिद को दीन के कामों का मरकज बना दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जितने शोबों में काम होता था, ऐ अल्लाह इस मस्जिद के मुताल्लिक़ जितनी जगह है, ये जो मस्जिद है, ऐ अल्लाह यहाँ पर वो सारे काम होने के लिए अपने करम से फैसला फरमा लीजिए। अपने फजल से उन सारे कामों को इस मस्जिद से लेने का फैसला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दावत के, तबलीग के, इस्लाह के, दावत दीन के, जिक्र अस्कार के, कलाम पाक के सीखने सिखाने के, मकातिब के कायम होने के, मुसलमानों के आपस के इस्लाह के, दारुल क़ज़ा के सारे काम मस्जिदों से मुताल्लिक़ हों, यहाँ से दीन के चश्मे जारी हों। ऐ अल्लाह इस मस्जिद के मुसल्लियान को, इसके मुताल्लिक़ीन को इसकी फ़िक्रें और कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो जो कोशिशें हो रही हैं अपने करम से अल्लाह काम करने वालों को कबूल फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा, इस्तिक़ामत नसीब फरमा। आपकी रज़ा और खुशनुदी के लिए इखलास के साथ सारे शोबों में काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा आलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। New Marathwada Jewelry Box, manufacturer and suppliers of showroom, display and tray. हमारा पता वागी रोड, समीराबाग, नांदेड़, महाराष्ट्र। फ़ोन नंबर 8055502226 9850084712।